So I'm back with all of you, and we will take on the journey from here. If you can see me, and if you can see Thursday, 2nd February 2023, 8 p.m. IST, summary of the Union Budget 2023, and focus is going to be on education. If you can see me, then just post it on the YouTube. Yes, we can see you, Major Dr. Gulshan Sharma. Just try and post it over there. Let me just see. Can we see each other? Because I'm still out somewhere. I'm logging in from somewhere else. If you can see me, then do let me know if you can see me. Okay. Sakshi, you get the point. You say yes. Okay, great. I'm so very happy. So ladies and gentlemen, when you log in from somebody else's account and you're just traveling and you're midway somewhere, a lot of things to be taken care of. Okay. I'm so very happy. First of all, my sincere apologies to who all joined initially and I lost them. I would request them to come back again. It's a Thursday, 2nd of February, 2023, and it's 8 minutes past 8 p.m. Indian Standard Time. That's what we call. And we are all together for the Union Budget 2023. Focus service industry, but I'll be taking on some of the areas which are next to your heart and my heart, and we take the journey together. Welcome on behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry. And if you recall, on 31st January, yesterday we had siesta, we had a holiday. Yesterday I wanted to travel. I had gone for a couple of tasks and I've just come back to the den, and thereafter we all are together. So Tuesday, if you recall, on 31st of January 2023, we had focused on certain areas: education, skills, tourism. What were our expectations from the budget? And today we will take the journey forward and we will see, because we are focusing on education, skills, tourism, and youth. Tourism I'll take on tomorrow. Today I'm going to take the budget 2023, what all has been brought over there. Our chamber deeply deals with the non-resident Indian world over, our brothers and sisters across the globe. So NRI's contribution to India's economy, in fact, in all respects, whether you talk about education, research, innovation, technology, mentorship, adopting the villages in their hometown, adopting educators, some exchange programs, everything whatsoever we talk about, non-resident Indians, they are doing very well. And if we recall, the Honorable Prime Minister gave a call a long time back that you should bring 5 tourists to India whenever you're visiting India. और इस साल टूरिज्म को भी बहुत पुश मिला है बजट में. कल हम टूरिज्म के बारे में बातचीत करेंगे. आइए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बेसिक सपना है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और उस डायरेक्शन को जाना है. We have come to the 5th position, but when will we come to the 3rd position? That also we will discuss after some time. Let's welcome to India's service industry and economy. But when I talk about the whole GDP, it's agriculture, manufacturing, and services sector together, we have to take care of. If you remember, we have discussed what all is the part of the service industry, what all it forms, so in your own time. So welcome to Budget 2023, and I'm going to focus on the highlights related to education, skills, technology and youth. और कल हम बातचीत करेंगे tourism की. आइए आगे चलते हैं. Now, what exactly we want to achieve in the fiscal deficit? Now, when you talk about the fiscal deficit, it's very important. Layman language में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी है, गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है और गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है, और दोनों के बीच में गैप कितना है. दूसरा, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है और आपकी इंपोर्ट्स कितनी है. क्या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है या आपकी एक्सपोर्ट घट रही है? क्या आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही है या घट रही है? All that you have to take into consideration.
Now, India is expecting 6.6 to 6.8% economic growth in 2023-24. It is slightly less than the 7% which was expected in the current fiscal year, and that is the financial year. तो आइए आगे चलते हैं और अब हम अपने मुद्दों पर आते हैं। पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ द बजट 2023 फॉर द एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के माध्यम से, बिकॉज एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। वी आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अगर आपको याद हो, बजट से पहले वी वर डिस्कसिंग एंड डेलिब्रेटिंग ऑन टू digital university, foreign university campuses coming up in India, how the education is shaping up, NEP 2020, NEP 2020 के अंदर स्कूल एजुकेशन में क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, वोकेशनल एजुकेशन में क्या हो रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में क्या हो रहा है, all that we were discussing with each other, if you recall. If we move on in that further, I wish to share with all of you, in the budget 2023, the center has allocated 1.12 lakh crore for the education industry or education sector. When you talk about this, तो budget में जो increase है वो 8,621 करोड़ के करीब है, as compared to the last year budget which has been given. स्कूल एजुकेशन में भी अगर आप देखें तो किस तरीके से बढ़ा है, और हायर एजुकेशन में भी उनकी एलोकेशन किस तरीके से की गई है. So that part everybody has to understand and they have to take care of. अब इनके दोनों के अलावा कुछ नर्सिंग कॉलेजेस की बातचीत की गई है, और फिर बजट में ये भी बातचीत की गई है कि हम किस तरीके से स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट पर, यूथ एम्पावरमेंट पर, फार्मर्स को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, SC/STs को कैसे सपोर्ट करेंगे. सो क्वाइट अ बिट ऑफ इट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस बजट. एक एक करके हम आगे चलते हैं. बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बातचीत की गई है. अब ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, तो 3 कीवर्ड्स को ले लीजिए. नेशनल, सेकंड इज डिजिटल, एंड थर्ड इज लाइब्रेरी. किन के लिए? बच्चों के लिए. नाउ द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विल बी सेट अप फॉर फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी बुक्स अक्रॉस द जियोग्राफीज, लैंग्वेजेस, general and level and devices, which has to be taken care of by different devices. You will have the accessibility of this particular national digital library. Okay. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward level and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ई-लर्निंग की एनवायरनमेंट की भी बात होगी, डिजिटल लर्निंग कल्चर की भी बातचीत होगी, और किस तरीके से एक अम्ब्रेला डिजिटल लाइब्रेरी 24/7 उसका एक infrastructure like a single window which will be accessible, which will be available, and people can search and they can take the things from there, how it's going to be connected. So national digital library के बारे में डिटेल में बातचीत हुई है, उसको भी हम लेकर चलते हैं. अब आगे आते हैं. आपको याद होगा हमने AVGC की पहले बातचीत की थी, और फिर आपको याद होगा हमने एक वेबिनार में आपसे ये भी बातचीत करते थे, हम नाना नानी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, चंदा मामा, चंपक और बेताल की कहानियां, और राजा विक्रमादित्य की कहानियां, और उसके अलावा एक आता था वो क्या कहते हैं, मालगुडी डेज. फिर RK लक्ष्मण के कार्टून पर प्रोग्राम आया करता था. सो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपसे बातचीत की थी कि स्कूल एजुकेशन में सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पिक्टोरियल वे में, कहानियों के माध्यम से एजुकेशन को और सरल कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग. देखिए, जितने भी लोग एजुकेशन में आज की डेट में टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, ये जो B.Ed की एजुकेशन ले रहे हैं और इसके बाद वो एजुकेशन की प्रणाली में आगे चलना चाहते हैं, आई विश टू टेल यू ओनली वन थिंग. It doesn't make a difference how much knowledge you have got. The most important skill is whatever knowledge you have got, how do you share with others? Your communication to connecting is very important. रात को सोने से पहले जो हम कहानियां सुना करते थे, हम कहते थे नानी कहानी सुनाओ, दादी माँ कहानी सुनाओ, और कहानी सुन के हम सोते थे, और कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे.
all time stories for the children. So National Book Trust और Children Book Trust की बातचीत की गई बजट के अंदर to build a culture of reading, क्योंकि रीडिंग का कल्चर खत्म हो रहा है। अब सब कुछ हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल के ऊपर। So to build the culture of reading and to make up for the pandemic time learning losses, because जो भी जैसा भी समझे हम, अब देखिए कहीं लॉस होता है तो कहीं गेन होता है। टेक्नोलॉजी में हम तेज चले लेकिन फिजिकल वे में हो सकता है हमारा वो लॉस रहा, बट दैट इज टू बी इवेलुएटेड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स, बाय डिफरेंट पीपल्स, क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर। समटाइम व्हेन यू फील दैट पैंडेमिक के दौरान में जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज बीन अडॉप्टेड इन सच ए वे दैट whatever we were supposed to do in the next 10 years, we adopted that in 2 years itself. So you can well imagine कि कितना फेस्ट कितना कितना फास्ट पेस हो गया उस सारी चीज का, वो हमको सबको हम सबको समझना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए थोड़ा सा यहां पर बातचीत करते हैं कि क्या बातचीत हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की बात कैसे हुई। सो टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग and to make up for the pandemic time losses, whatever has been done in the learning teaching, the National Book Trust or the Children Book Trust and other such sources, they will be encouraged to provide and replenish the non-curricular titles in the regional languages as well as English language to in these physical libraries जो हमारी हैं, और वहां पर एक कोलैबोरेशन एनजीओस के साथ भी लिटरेसी का, which will also become the part of this initiative. Now to inculcate financial literacy, now this is something very important. आपको पता है कि अब जब हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है तो आप अपना एक बटन दबाते हैं, एक ऐप अडॉप्ट करते हैं, आप पेटीएम से, गूगल से, यूपीआई से, किसी से भी आप देखिए किस तरीके से आप फटाफट किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं। आपके बैंक जो हैं वो आपके मोबाइल फोन पे आ गए हैं। यू हैव गॉट ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। मेरा ख्याल हमें याद भी नहीं होगा कि हम कितने महीने पहले बैंक गए थे। So to inculcate the financial literacy, financial sector regulations and organizations will be encouraged to provide appropriate reading material to these libraries depending on the age profile of the children. बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो मदर हैं, हमारी जो विमेन हैं, दे ऑल्सो गेट, इट इज नॉट ए फिजिकल लिटरेसी कि आपको एकेडमिकली क्या क्या आता है, क्या, उन चीजों को छोड़ दीजिए। अब उसके अलावा एक बातचीत हुई है कि पैंडेमिक के दौरान में एक और बात सबको समझ आई है कि हेल्थ सेक्टर के बड़े चैलेंजेस थे। आपको याद होगा डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मे गॉड ब्लेस दोज डिपार्टेड सोल्स, कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे नर्सेस, उन लोगों ने अपनी जान दे दी औरों को बचाने के लिए, आपको याद होगा। और वर्ल्ड ओवर सबको पता लगा कि कितनी क्राइसिस हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। ओ माय गॉड। सो टुडे people, those are into nursing, those are into paramedical, and those are somewhere associated with the medical, that is your health sector and wellness sector. आपको एक बात समझनी होगी, you have got a great future, you have got a bright future, you have got a global acceptance. अभी केयर टेकर वर्ल्ड ओवर चाहिए, नर्सेज वर्ल्ड ओवर चाहिए। आप किसी कंट्री का नाम लीजिए, मैं कुछ एक अपने एनआरआईज के साथ बातचीत करता हूं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, बाकी कंट्रीज में, हर जगह मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। एंड इंडियन पीपल आर वंडरफुल। यू गॉट टू फिल दैट गैप बिकॉज अल्टीमेटली यू गॉट टू सी। हमेशा हम ये ना कहें सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो Sarkar is going to open 157 new nursing colleges in India in order to improve the healthcare system and to generate more options for medical education. The government will establish 157 nursing colleges, and these colleges will be built in co-location with the existing जो हमारे colleges हैं उनके साथ जो 2014 के अंदर पहले बनाए गए। अब आगे चलते हैं। This is also again very important. आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देखिए, आप थोड़ा सा उन एरियाज को देखिए जहां पर आपको बेसिकली ट्राइबल बेल्ट मिलती है। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और आपके झारखंड में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है।
बाकी जगहों में जब मैं जाता हूं तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। एंड गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव दैट 38,000 more jobs, new jobs will be created in the Eklavya model residential schools. इसकी भी बात बजट में की गई है एंड अगले 3 साल के अंदर ये सब कुछ होगा। एंड 740 Eklavya model residential schools, and they will serve almost 3.5 lakh tribal students. You can well imagine how much is the scope which is coming up in future, which we all have to understand. तो ये आप इनिशिएटिव्स को देखिए, एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है। जब आप किसी चीज को पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं तो आपको पॉजिटिव नजर आती है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। अब आइए देखिए, आगे चलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स का आपको याद होगा, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, दे आर ब्रिंगिंग अवेयरनेस कि नई बीएड एजुकेशन कैसे होगी, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जो इन हाउस है वो कैसे किया जाए, जो नए टीचर आएंगे उन सबको कैसे तैयार किया जाए। तो यहाँ पर इस बजट में डाइट का जिक्र आया है, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बातचीत की है कि जो एनईपी 2020 है, जिसके अंदर हम फेजेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो डिजिटल वे में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आईसीटी के माध्यम से, इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, जो डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, they will be developed as vibrant institute of excellence. The procedures and methodologies of teachers training will be re-envisioned through the innovative pedagogies and curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys and ICT implementation. इन सब चीजों को लिया जाएगा। That is something very important which you all have to understand and we have to work it out. And New Education Policy 2020 उसके हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। आगे चलते हैं इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में। और आई एम श्योर यू आर ग्रास्पिंग, यू आर गेटिंग द आइडिया। 100 new labs will be developed in India for developing 5G apps. Wow, heartiest congratulations! क्योंकि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। We would be very keen to know कि ये जो 100 labs आ रही हैं, इनमें से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कितनी लैब्स आती हैं, that would be our chamber's concern. We would be very, very keen. And इसमें ये भी कहा गया है कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो अक्रॉस द कंट्री हैं, 100 labs will be set up. और ये जो है 5G की सर्विसेज के नए ऐप की 5G की सर्विसेज को आपके एग्रीकल्चर में, आपके एजुकेशन में, आपके स्मार्ट क्लासरूम में, आपके ट्रांसपोर्टेशन में, आपकी लॉजिस्टिक्स में और आपके डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरीके से 5G का। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, I was just listening to one of the interviews of the Honorable Minister for, our MeitY, that is the Electronic and Information Technology when we talk about telecom का। तो जब मैं वाशन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, एक मैडम मिश्रा किसी टेलीविजन चैनल से उनका इंटरव्यू कर रही थी, इट वाज सो नाइस टू हियर दैट। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारा विजन था कि हम अगले 3 महीने तक रोल करेंगे 200 सिटीज के अंदर 5G। कहते हैं कि लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं टीवी के माध्यम से, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने कहा वी हैव ऑलरेडी डन 200 cities with the 5G. So ladies and gentlemen, young boys and girls, startups, innovative, our children, you are dynamic, you are future, you are present, you are today, you are tomorrow. अरे यार जगो, थोड़ा उठो, ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। This is something very very important. हरमनदीप सिंह जी लिख रहे हैं, required nothing about SC/ST journal, house score could come first. That is also something very important. पर एकेडमिक नॉलेज ही क्या जरूरी है? क्या सिर्फ एक थियोरिटिकल स्कोर्स को, मार्क्स को स्कोर करना ही सब कुछ है? I personally feel maybe हरमनदीप जी, हमको इवेल्युएशन सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा थियोरिटिकल वे ऑफ इवेल्युएशन है कि जो क्लास में पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया, वो आपने जाके एग्जाम में लिख दिया और उसके बाद आपको मार्क्स मिल गए, आई थिंक
that evaluation system also, because I wish to tell you that countries like Finland, जहां पर 12वीं क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं होता, तो बच्चों की इवैल्यूएशन किस तरीके से होती है। और देखिए फिनलैंड के अंदर सारी बेसिक एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में है वहां पर। Anyway, NEP 2020 is talking about that in a big way, that education hopefully to be imparted in the regional languages wherever the people come from. Now coming over here is कि कुछ लोग जो पीछे रह गए, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत देर तक नेग्लेक्ट किया है, बहुत देर तक नेग्लेक्ट किया है। अगर आप देखें, ये तो बेसिकली प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 के बाद लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में हुआ, एक्ट ईस्ट के बाद वाइब्रेंट ईस्ट हुआ। वहां पर जो ट्रेन्स, क्योंकि आई कम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड एंड आई सर्व्ड इन द आर्मी आल्सो, आई सर्व्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, and now I am deeply associated with the non-resident Indians and the education ecosystem, tourism, hospitality, skills, and I understand वहां के जो बच्चे हैं they are very dynamic, लेकिन हमने उनको बहुत देर तक अपने साथ नहीं जोड़ा। They also require lots of hand holding, and that is something very important. हरमनदीप जी, आप अपने कुछ एक टूर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप नॉर्थ ईस्ट में भेजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू। लेट्स वर्क आउट द बेस्ट पॉसिबल वे। जो पीछे रह गए हैं उन्हें साथ ले लें और हम सब लोग इकट्ठे चलें। तो आइए, ये 100 लैब्स की जो हम 5G एप्स की बातचीत कर रहे हैं, नाउ एप्स इन द स्मार्ट क्लासरूम्स, फार्मिंग में और आपके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और मेडिकल में, सब जगहों में, हाउ वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट थ्रू आवर 5G एप्स. 3 centers of excellence for artificial intelligence to be set up in India. This is also amazing. मुझे राजीव मल्होत्रा जी की किताब याद आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर पार्क। उन्होंने कितने सारे प्रोग्राम और कितने सारे यूट्यूब पर इंटरेक्शन किए कि लुक इंडिया, काइंडली अंडरस्टैंड। अगर आपने अब मिस कर दिया तो इस डिकेड के बाद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। The other day I was listening to Lord Desai from UK, and in his one of the program of the, on the television, where he was talking about service industry, and उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि look, India has got a soft power. Indians are very intelligent and very creative. जिस चीज के अंदर हम अच्छे हैं, जिस चीज के अंदर हम अच्छा काम कर सकते हैं, और देखिए टूरिज्म को भी इस बजट में बहुत ज्यादा पुश मिली है। कल रात को आप 10 जो हमारे ट्रैवल ट्रेड के टॉप नॉचेस हैं, you'll be meeting all the leaders of the tourism tomorrow. Don't forget, I'm informing you in advance. कल हम एक बहुत बड़ी डेलिब्रेशन और पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं कल रात को 8 बजे, जो टूरिज्म पर फोकस्ड होगा। बट आई विश टू शेयर ओवर हियर विद ऑल ऑफ यू कि 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप रोबोटिक्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे एजुकेशन में, हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारी स्मार्ट सिटीज में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत पुश मिला है इस बजट के अंदर। अब आप आगे देखिए, the government is also looking to work on artificial intelligence as it is the next future. And it is now clear after the announcement of the union budget of 2023 that government is very keen make artificial intelligence in India and make artificial intelligence work for India. Make artificial intelligence in India and make artificial intelligence work for India. And 3 centers of excellence for AI will be set up in the top educational institution. Leading industry players will partner in conducting the interdisciplinary research and developing cutting-edge applications and scalable problem solutions in the area of हम किन-किन areas में, agriculture में, health में, sustainable cities में, all this will come as a part of the, so AI का जो ecosystem है, that will nurture the quality human resource in India for the entire world. Wow.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की भी बातचीत हो चुकी है. Different sector skill councils हैं, and government has announced that lakhs of the youth will be covered through this, and they have also discussed over here coding ka, artificial intelligence ka, robotics ka, or this IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और 3D प्रिंटिंग का, ड्रोन्स का, सॉफ्ट स्किल्स का. और इसी के साथ साथ एक और बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि पहले जो NSDC है या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इट वाज नॉट फोकसिंग मच ऑन इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट. मुझे आज भी याद है कि जब ये शिवाजी स्टेडियम के पास ऑफिस हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, और उसके बाद जब ये एरो सिटी शिफ्ट हुए, तो वहां पर भी couple of meetings I had been holding with them and telling them कि look, there is a huge shortage world over. Why don't you focus overseas also? क्योंकि हमारा चेंबर तो पहले बहुत सारी रिसर्च कर चुका था. In different countries we had already taken the evaluation. So heartiest congratulations to Honorable Prime Minister and the Finance Minister, वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि now to skill the youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. I still recall last year जब हमने अपनी annual convention किया था North India का, और उसके अंदर NSDC ने हमारे जब participate किया, तो the lady had come and she mentioned about how they are thinking and how they are planning. So I'm very happy that sector skill councils, they will work in that particular direction. Future is huge. Future is wonderful. It all depends how realistically we implement everything in the decent way. National Apprenticeship Promotion Scheme की भी बातचीत हुई है. In the budget 23-24 में, it is mentioned that a pan-India National Apprenticeship Program scheme is on its way, and this scheme will be extended and it will support almost 47 lakh youth in 3 years. Wow, it's amazing. And एक होती है प्लानिंग, फिर उसके बाद होती है इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद होती है मॉनिटरिंग. So our chamber will look into all those wonderful. बजट के साथ साथ मैं आपको लेके चलना चाहूंगा जो मन की बात प्रोग्राम है. I was sitting in one of the colleges recently, which is a government college for education in Chandigarh in Sector 20, and I was talking to the principal and their teachers, their dynamic teachers for mathematics and library resource center and others, and I was telling them, why don't you plan? Why don't you plan a thing कि जहां पर आपके स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर को मन की बात के लिए अपने विचार भेजें और उन्हें कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे पास ये आइडिया है. अरे जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल कम टू नो व्हाट डज यूथ वांट, यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है. जितने भी लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, please make optimum use of the OTT platforms and Internet of Things and ICT. जो भी platforms available हैं, उनके माध्यम से आप अपनी आवाज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाइए, उन्हें लिखिए, उन्हें बताइए. अब ये देखिए किस कंट्री में ऐसा होता होगा जो हमारी कंट्री में हो रहा है. कैन यू इमेजिन क्या सोच है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि बच्चों तक परीक्षा पे चर्चा 2023 with the Prime Minister Modi. मैं कहता हूं अमेजिंग, दिस मैन इज गॉड गिफ्टेड. परीक्षा पे चर्चा 2023 की जब आप बातचीत करें, तो दिस वाज द 6th edition which was held in Tal Katora Stadium in New Delhi on 27th of January. Just imagine, few days before. And the Prime Minister of India, he interacted with the students, parents, teachers, and there were lots of discussions, and they were focused on the growth of the students, particularly to reduce his or her stress during the examination. परीक्षा की चर्चा के अंदर बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, और ये देखिए मैंने जिस निकाला है आप लोगों के लिए अपने चेंबर की तरफ से, you all can enjoy and you can just love it. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को बताए. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कन्वेड टू ऑल द चिल्ड्रन, नो मोर पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस, know your limitations and try to work on it. Reduce stress by avoiding distraction. Family stress on students is not acceptable. Parents बच्चों को pressurize ना करें. Time management is a must for children. परीक्षा की चर्चा
जो परीक्षा के ऊपर जो बातचीत हुई वहां पर, यहाँ पर स्टूडेंट्स को नई नई बातें बताई गई, हाउ टू टैकल दी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, आप किस तरीके से सब कुछ करें। सो माई गवर्नमेंट की जो माई गव की वेबसाइट है उस पर जाइए, आप लोग वहां लॉग इन कीजिए, अपने विचार शेयर कीजिए। आई वुड फील वेरी हैप्पी इफ ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट। हर इंसान को आगे चाहिए। नीति आयोग को भेजो, प्राइम मिनिस्टर को भेजो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को भेजो, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की और आईटी की इंडस्ट्री है उनको भेजो। भेजो, अपनी तरफ से शेयर करो अपनी इंफॉर्मेशन को। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 6% बजट की बातचीत हुई थी, अगर आपको याद हो। सो वी विल सी हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस ईयर, वी विल टॉक अबाउट दैट। नाउ दिस इज एन अमेजिंग स्लाइड, बिकॉज यहाँ पर हमने आपकी प्रधानमंत्री की एग्जामिनेशन की और बच्चों के साथ बात की, चर्चा भी खत्म की, एजुकेशन की भी बात की, स्किल की भी बात की और टेक्नोलॉजी की भी बात की। अब हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं कि फ्यूचर में 2023 में क्या ट्रेंड आ रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स कैसे आ रही हैं, और सॉफ्ट स्किल्स आपकी अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए कैसे आपकी स्किल्स आ रही हैं। पहले सॉफ्ट स्किल की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया हैज गॉट ए ग्रेट सॉफ्ट पावर। देखो, पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना जॉब के बारे में मत सोचिए, आप स्टार्टअप के बारे में सोचिए, यूनिकॉर्न बनने का सोचिए, आप साथ ही में एंटरप्रेन्योर बनने का सोचिए। कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे यू कैन डू द वैल्यू एडिशन फॉर द होल कंट्री इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर ए जॉब। मुझे शर्म आती है कि कुछ एक लोग मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, और वो कहते हैं हमें पियून का जॉब गवर्नमेंट में दिलवा दो। मैं ये नहीं कहता कि पियून का जॉब खराब है, लेकिन भैया इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? फिर तो तुमने रास्ता ब्लॉक करके रखा। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, पहले सॉफ्ट स्किल की बातचीत करते हैं। आपकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीम बिल्डिंग, नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर रेजिलियंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, आप औरों के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स, आप ये देखिए कि आज इस एज में आई एम ऑल्सो वेरी कीन एवरी डे। इफ आई टेल यू, आप कहेंगे नो आई डोंट बिलीव, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑन द एवरेज आई फ्लिप थ्रू 40 videos on the YouTube every day. I learn something new. I pick up something new. मैं टेक्नोलॉजी का दीवाना हूं, क्योंकि जो इंसान टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा, इफ यू डोंट कीप पेस विद द टाइम, यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। किसी और को दोष मत दीजिएगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग अप इन अ वेरी बिग वे। आपकी मशीन लर्निंग आ रही है, आपकी बहुत सारी रोबोटिक्स आ रही हैं, स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं। रात को आप सोचते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं तो नए ऐप होते हैं, नए नए सर्किट्स डेवलप होते हैं, नई नई कोलैबोरेशंस होती हैं। आई वुड मेक ए रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, या तो टीचिंग प्रोफेशन में मत आइए, कोई और जॉब कर लीजिए, लेकिन जब आप किसी बच्चे की जिंदगी के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा खेल रहे हैं, जब आपको किसी बच्चे की जिंदगी का निर्माण करने का मौका मिलता है, एंड यू आर ए टीचर, यू आर एन एजुकेटर, यू आर ए काउंसलर, यू आर ए मेंटोर, यू आर ए कोच, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव पर्सन, देन ओनली यू कम इन दिस प्रोफेशन। देखिए, या तो आपको वो प्रोफेशन मिल जाए जो आपका पैशन है, नहीं तो जो आपको मिला है उसी में अपना पैशन ढूंढ लीजिए, यू वुड एंजॉय। और दूसरा, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल आई विल टेल यू टुडे, ये जरूरी नहीं है कि आप गाना गा सकते हैं कि नहीं, आप गाना गुनगुना सकते हैं, आप बाथरूम में गाना गुनगुना सकते हैं, आप किचन में गाना गुनगुना सकते हैं, आप सोने से पहले गाना गुनगुना सकते हैं। म्यूजिक को प्यार कीजिए, म्यूजिक को अडॉप्ट कीजिए। म्यूजिक ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पीस। जैसे हम बातचीत करते हैं ना योगा की, मेडिटेशन की, किसी अच्छे स्पा में जाकर देखिए, वहां एक पर्टिकुलर म्यूजिक बजता है। जब वो म्यूजिक बजता है तो आपको सूदिंग मिलती है, सूदिंग मिलती है तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है तो नर्व्स रिलैक्स होती हैं, नर्व्स रिलैक्स होती हैं तो आप सो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोग्राम देखते देखते सो जाएं। 2-3 स्लाइड और है, मैं आपके साथ शेयर कर लूं, बाकी कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। अल्टीमेटली हर एक टीचर को एक बात समझनी होगी, हर एक प्रिंसिपल को, हर एक टीचर को, हर एक एजुकेटर को एक बात समझनी होगी, लेट अस अंडरस्टैंड हमारी युवा पीढ़ी क्या चाहती है,
What does youth want? यूथ की क्या इच्छाएं हैं, यूथ की क्या सोच है? अरे देखो, ये नहीं कि उनके दिमाग में भरना है, उनके दिमाग को खाली करना है ताकि वो अपनी पेडागोजी लेके आए, वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आए, वो अपनी इनोवेशन लेके आए, वो अपनी रिसर्च लेके आए और आपको बताएं this is something new which I'm looking forward to. Adopt technology, be open to learning, learn as much as you can, और फिर उसके बाद ये सोच लीजिए, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. So let's come together for the service industry. Etiquette, manners, gesture, body language, personality, articulation, communication, connecting. औरों को प्यार कीजिए, जितना प्यार कर सकते हैं करिए। ये दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कोई नहीं लाइक करता तो मैं ही अच्छा नहीं हूं। Let's make education and skills relevant. That is something very important. इसके साथ ही आज हमारे चेंबर के 1803 वेबिनार्स कंप्लीट होते हैं 25 मार्च 2020 में। अगर आप मेरे साथ किसी भी वेबिनार में आना चाहते हैं, अपनी थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं, अपने विजन को शेयर करना चाहते हैं, irrespective of your age, irrespective of your place, irrespective of your caste, color, sex, creed, सबको भूल जाइए, आप आइए, जो कुछ भी आपके पास है। और ये आपका YouTube चैनल है ICSI इंडिया, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री का। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट कीजिए, अपने व्यूज पोस्ट कीजिए। और जाने से पहले मैं एक बार आपके नाम तो पढ़ दूं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। विधि जायसवाल मैम, हार्टी वेलकम, थैंक यू। दिलशान वफा, तुम बेवफा तो नहीं हो, दिलशान वफा, तुम बहुत अच्छे हो। ओके, उसके बाद साक्षी चौहान, हार्टी वेलकम। जूली सुबा मैम, वेमजो वेरो, एसो वासा इम्फॉल, पंकज त्रिपाठी, निशंक मौर्य, निशा अग्रवाल, ऋषि मोहन, स्टूडेंट्स क्वेरीज ग्रुप, रवनीत चावला मैम, रवनीत चावला मैम, namaskar and hearty welcome and a pleasure. She is a wonderful teacher in Sector 20, that is the government college, B.Ed college in Chandigarh. And then comes Arshdeep, and then comes Rahul Chaudhary, then comes Julie Supa, then comes और कौन है, जितेंद्र राठौर, और उसके बाद हमारे पास हरमनदीप सिंह जी, थैंक यू। लाइशराम दामिनी जी, हरमनदीप जी, I think you are from tourism industry, if I correctly remember, from the Association of the Domestic Tour Operators, or I would just like to recall somewhere I read your name earlier. Then Paryansha, hearty welcome. Green evening, great. And then comes Rosie Chakma, then comes Prachi Kalita, then Anjan Kumar Bora, then Kip Kipgin, Arun Mayer, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत सारा अच्छा से पोस्ट करते हैं। आनंद मुखर्जी, बाबू मोशाई, कोलकाता, अमीशा जी, थैंक यू। अनुप्रिया, थैंक यू। अनिरुद्ध जी, थैंक यू। Dr. Nisha Singh, ma'am, she is a mathematics teacher in Sector 20 in Chandigarh in the government college, and I have requested ma'am to work on music for mathematics and music for education. Wonderful. Deepa Hazarika and Rishi Mohan. Mohit Chaudhary ji, thank you. Totally agreed. Thank you. And Laishram Damini, Claudia Lingua. And then comes other groups. Thank you very much. Thanks a lot. That is amazing to have all of you. With these words, ladies and gentlemen, अब आप कहोगे कर्टन रेजर कहाँ है? भूलिएगा नहीं, कल आपको ले चलेंगे देखो अपना देश, गवर्नमेंट क्या क्या दे रही है। Tomorrow evening you will be meeting wonderful people from the galaxy of the tourism industry, domestic tourism, international tourism, education tourism, and cultural tourism, adventure tourism, ecotourism, nature tourism, wildlife tourism, rural tourism, farm tourism. कुछ भी आप बातचीत कीजिए, जर्नी लीजिए, रोड से, रेल से, ट्रेन से, बाय प्लेन से, bicycle पर. Yes, you would also meet one youngster tomorrow from Manipur, who basically is on bike
He has done already the bicycle journey, then he has done the motorbike journey, and now he has fitted some kind of a motor on his bicycle, and he is on a great tour. He touched me emotionally today. He told, "Sir, we have opened a restaurant in Manipur, which is being organized, by deaf people, special children, deaf. They are running that. And you know what is the name of that restaurant? I think I should tell you tomorrow. It's a wonderful. I was touched emotionally when he told me. So he would also be joining us from Manipur tomorrow. He told me. And with these words, ladies and gentlemen, look forward to meeting you tomorrow evening at 8 p.m. for yet another powerful evening. Bhuliega nahi. Chandigarh is a beautiful city, and I'm very keen. Chandigarh should take a lead to become the role model in education, in skills, in competencies, in capabilities, displaying the talent, research, and innovation through our digital inspirational lab in digital way. With these words, thank you very much for joining us today. Look forward to meeting you tomorrow evening. Happy stay, happy living, and happy world, happiness all around. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और